and engage with your visitors. अगर आपने कोई पेज बनाया है या without having a page, अगर if people are interacting with you on these social networks, try to reply back. Don't ignore. अगर किसी ने हाय बोला है तो आप हाय बोल दीजिए, किसी ने सलाम बोला है तो वालेकुम सलाम बोल दीजिए, किसी ने वालेकुम अस्सलाम बोला है तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बोल दीजिए. You should engage with your visitors. Specifically, if you are a page and people are reaching out to you, that means they are your customers. So you should treat them well and respond them well. Don't ignore it. और इसकी frequency बनाइए कि अगर visitors बहुत ज़्यादा नहीं हैं, so you can like make it a habit of checking those things or checking your inboxes on these social networks every 3 day or 4 day gap. Or if engagement is kind of more regular, you can make it a habit to check these stuff on a daily basis. It can vary, case to case, as per case to case, and you can decide it. But the point is, you should be regular with that interval. Now things are getting interesting. Creating content. जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कंटेंट. आप उस पर कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ शेयर करना होता है, तो शेयर क्या करेंगे, आप कोई उस पर कोट लिखेंगे, कुछ बात बताएंगे, कोई कहानी सुनाएंगे, या कोई इमेज शेयर करेंगे, या कोई वीडियो शेयर करेंगे. इसमें मेजॉरिटी पार्ट होता है फॉरवर्ड्स का, यानी कि आपके पास पीछे से कुछ आया, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने उसको आगे बढ़ा दिया. आपके पास कोई वीडियो आई, आपने वीडियो देखी, अच्छी लगी, आपने उसको आगे बढ़ा दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट यू शुड रियलाइज दैट कहीं तो ये चीज क्रिएट होती होगी एंड समवन हैज टू क्रिएट इट. दिस इज वेयर दीज थिंग्स कम्स इन. So rather than forwarding others stuff, if you would like to create your stuff, create your own stuff, or for that matter, if you have something, आपके पास कुछ story है, आपके पास कुछ concept है, you want to present it, so you would like to present it in a better way, in more effective manner, in a more presentable manner. So there are tons of tools out there which you can use for those purposes. There are tools to create images, there are tools to create graphics, there are tools to create logos, there are tools to create nice videos, there are tools to create presentations, there are even tools to translate your stuff, there are tools to record your paragraph. For example, आप वीडियो है, वीडियो में आप कुछ इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई अंग्रेज इसको बोले. सो देयर आर टूल्स इन विच यू पुट दैट पैराग्राफ, पेस्ट दैट पैराग्राफ, press the play button, and it would start speaking those whatever you written, and you can record it and put it in as a voiceover on your video. So I mean, I would say there are tools for everything. We would like to cover few of them very quickly. Use online tools. Some of them are free for basic users. Some are comes with a premium. You have to pay something. But they mostly for every kind of tool there are free versions out there that would suffice the need of most of the users. उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है और ज़्यादा यूजेज की, then you can decide on whether you want to pay for something or not. तो इसमें अगर हम ग्राफिकल कंटेंट्स की बात करते हैं, like I said, there is a website, there are others as well, but this Get Stencil is a very easy website. Again, it's a free one. So I would like to take you to that website to give a brief demo about how can you do different stuff. So let's see how we do it. GetStencil.com. Oh boy. The basic version is free, so you can use it unless you have that big of a requirement.
then it becomes needed to pay. So what I would like to quickly do here, let's create a banner or a pamphlet or leaflet kind of thing here. So what we can do, there are various tools. I would like to skip those. I would just briefly, we have an image that we would like to use it. You can just drag and drop those images there. Let's use this image. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ, और आप देखेंगे कि किस तरह से आप लर्न, ये एक सबसे बेसिक हम एक पोस्टर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और देखते हैं कि वो हम उसको कामयाबी से बना पाते हैं या नहीं। यहाँ से आप उसका ये सब चेंज कर सकते हैं। There are various tools। यहाँ से आप इनका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज आप इनका चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस, कलर्स इसमें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, जिससे थोड़ा कलर आप इसमें से पिक कर सकते हैं। अपनी पिक्चर में से एग्जिस्टिंग कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं। So it would match with your sorry sir, we are running out of time. Hello? Time. Yes sir, time short है. Okay. Okay. All right. So on. And I'm sure you would be able to do it without any problem. Videos, next thing is videos that you would like to what you can use to create videos. If you own an iPhone or iPad or any of the iOS device, it has an inbuilt tool iMovie, which is a very very effective tool in editing your existing movies. आप मूवी कोई भी अपने स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड करते हैं, उसमें इफेक्ट्स और उसमें एडिटिंग करने के लिए that is one of the great tool. अगर आप ये यूज नहीं करते हैं, if you just have a Windows लैपटॉप और Windows ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एक फ्री टूल आता है that is called Windows Movie Maker. That is the one which we use personally for editing and publishing the videos of our own webinars. So again, that's a free tool and very powerful tool to do basic editing with your videos. Next thing, आप लोगों को पता होगा शायद, PowerPoint में आप presentations बनाते हैं, उसमें आप slide shows बनाते हैं। उन slide shows को आप एक वीडियो की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ट्रांजिशनल वीडियो बनानी है कोई, या प्रमोशनल वीडियोस बनानी है जिसको हम इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बोलते हैं, यू कैन क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपको पहले से आता है, और उसको यू कैन सेव इट एज अ वीडियो, देन यू कैन सेंड इट ओवर एंड प्ले इट, और वो चलती रहेगी एज अ वीडियो. सो दैट इज अगेन अ गुड ऑप्शन. देयर आर free tools, online tools available as well. Lumen 5 is one of them, and I'm sure there are not many others out there which are free to use for certain limit, and then they start charging. So you can use those tools as well. Next important tool is about how you write and how those writing needs to be perfect. कि आप कोई भी email लिखते हैं, letter लिखते हैं,
So it requires you to what I would say to be correct. तो उसमें grammatical mistakes होती हैं, उनको correct करने के लिए there is a free online tool Grammarly, उसके ads भी आपने देखे होंगे. So you can go to that website, you can download that extension, download a small stub onto your computer, and it keeps with you everywhere on your email system, on your computer, even within Microsoft Word, and all those kind of things. So it picks up the wrong grammar, wrong composition, and it can suggest you better composition of sentences. So that is again a very good tool. Now, before we move on to the email management part, there is a question for you where I would like you to answer. The link is I'm posting a link on the chat box. You can use that link or directly go on that website and share that with me. You must have received the link in your okay. So okay, so let's talk about email management. The email management is, as you all know, email management is email is something that is one of the most critical or one of the official communication mode as of today. So it is important that we should work on our email systems and improve on our email communication. The very first thing that we need to consider about is having a professional email address. So one thing that we would recommend to everyone is to at least have professional email addresses or personalized email addresses if you are into business. So if you are into business, you own an institution or you own a clinic or own any business. So the best thing which is recommended is have your personal or personalized website and have email on those websites. And if you are not, then still the email addresses which seems very funky, which seems very glaring, they are not considered as professional email addresses. So here are examples as well. For example, जब हम नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं, वी आर वेरी मच एक्साइटेड, जोश होता है, वो सारी चीज़ें. तो ज़्यादातर मैंने अक्सर देखा है लोग नाम किस तरह के रखते हैं. लड़के ज़्यादातर नाम रखते हैं डैशिंग, और वो राइडर और मैचो, और कुछ बेचारे ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं तो वो लवर बॉय, और ये सारी चीज़ें अपने नाम के आगे पीछे जोड़कर वो लगा लेते हैं. अगर ख़वातीन की बात करी जाए तो वहाँ पर वो फेरी, एंजल, डॉल, ये सारी चीज़ें उनके नाम के आगे लगी होती हैं. सो विच मेक सेंस एट दैट टाइम. लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि आज मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने BMS में एडमिशन लिया, आप बहुत एक्साइटेड हैं और मतलब आप डॉल हैं और आप डैशिंग हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हैं. लेकिन 5 साल के बाद, 4 साल के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे और किसी प्रोफेशनल ऑफिस में बैठेंगे, और इट वुड बी हार्ड टू चेंज योर एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी. उस वक्त मान लीजिए आप किसी अच्छी पोस्ट पर, मान लीजिए आप कहीं क्या कहते हैं रेसिडेंट डॉक्टर हैं और वहाँ आप डैशिंग जावेद या एंजल सदफ हैं. सो इट डजंट अपीयर दैट वेल.
तो वो डिसीजन, वो थॉट आपको आज लेना है कि मैं आज जो ईमेल आईडी बनाऊं, दैट शुड गो अ लॉन्ग वे विद मी, दैट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे विद मी। तो वो आने वाले वक्त में ऑब्सोलेट नहीं लगना चाहिए। तो वो डिसीजन आपको आज लेना है। आज भी वक्त है, तो आप अपना ईमेल ढूंढ लें कोई और अच्छा। अगर आपका करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अगेन नॉट टू लेट। दी गुड एग्जांपल्स आर यूज योर फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम Abdullah.Ansari। यूजुअली ये अगर जीमेल की बात करें या पुराने ईमेल सिस्टम्स की बात करें तो उस पर अवेलेबल नहीं होता है। सो यू नीड टू डू द ट्रिक। अब वो ट्रिक में क्या होता है, 1970 और डेट ऑफ बर्थ लगाना, दैट इज I mean, you can do that as a last resort, but again, what you can do is you can append the name of your organization, of your school, or anything like that. For example, Abdullah.nium or Abrar.amu, things like that. आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। और just a disclaimer, ये जो email ID मैंने example के लिए लिखे हैं, ये रियल नहीं है, किसी के हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब जज्बाती होकर आप अपनी बात आगे ना बढ़ाएं इन पर। If you are professional, then अब्दुल्ला अंसारी साहब से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि मेरे पास वक्त अब 3 मिनट रह गए हैं। अच्छा, तो प्लीज कंक्लूड कर लीजिए। रिक्वेस्ट है सर आपसे। बिल्कुल, थैंक यू। तो बस ठीक है। ये बात है इसमें ईमेल से रिगार्डिंग वक्त की। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास कमी है, तो हम इसको यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। गूगल माई बिजनेस हम वैसे भी स्किप करेंगे। व्हाट्सएप के बारे में मैं जल्दी से, आई गेस आप सभी लोग जानते हैं, और 3 मिनट वैसे भी कम है उसके लिए। तो टाइम कुछ बढ़ सकता है। Recap, this is what we have learned, information technology, Facebook, LinkedIन, कंटेंट के बारे में हमने बात करी कि क्या क्या हमने किस तरह से कंटेंट हम कर सकते हैं। ईमेल मैनेजमेंट पे हमने टच किया, और पर्सनल मैनेजमेंट इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो उस पर बात कर पाएंगे। और आई गेस थैंक यू वेरी मच। आपके पास उसी प्रेजेंटेशन में हम दोबारा से वो शेयर करते हैं एक फीडबैक फॉर्म, उसको आप और कवर कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर नुसरत अख्तर। डॉक्टर नुसरत अख्तर, मुझे अनम्यूट करिए। हाँ, इनका प्रोफेशनल ही, ये आईटी प्रोफेशनल है, और इनका तो काम ही मतलब डिफरेंट प्रोफेशनल्स को उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को आईटी के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह डेवलप किया जाए, ये ही है इनका। तो इनकी बात को सुनने के लिए 1 घंटा क्या 2 घंटे 3 घंटे भी तो कम पड़ सकते हैं। तो मैं माजरत के साथ मतलब हम उतना मुस्तफीज नहीं हो सके, और इसके बाद में जो है डॉक्टर नदीम साहब से गुजारिश करूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स के साथ जो है प्रोग्राम को कंक्लूड करें। ओके। सुनने को मिला जनाब तनवीर अहमद साहब का, अब्दुल्ला अंसारी साहब का। तनवीर अहमद साहब ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, करंट टेक्नोलॉजी, और ये सच है कि हमें अगर अपने रेस में शामिल रहना है तो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा। लेकिन एक बात बीच में कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त ये कोविड का ये सब मामला चल रहा था, तो उस वक्त हम ये सोचते थे कि पता नहीं अब हम लोग कब मिल पाएंगे, कब हमारे सेमिनार्स फिर से शुरू हो पाएंगे। एग्जैक्टली। ये तनवीर साहब, जी तनवीर साहब पटना में बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। अब्दुल्ला अंसारी साहब बैठे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये जरूरी है कि हमको करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली चलने की जरूरत है, तभी हम बहुत अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। और जो कोविड-19 के मुतालिक बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डाटा और अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया तनवीर साहब ने, और क्लास की बातें की, सब कुछ ये बहुत अच्छी बातें हैं। और हर चीज़ के